It's like a machine that's working there. Right. And at the moment with us, on a subject of far greater importance, very frankly speaking, which is going to remain permanently with us. Environment warrior, former journalist, later PR man, and now, of course, battling for the environment with all that he's got. Our old friend, Mr. B.N. Kumar. B.N. K. Saab, namaskar. Namaskar, namaskar. How are you, sir? How are you? We are meeting after a long time. You've been very busy. I believe all your battles have taken you all over the place. Lots of matters. Yes, what is this with the flamingo deaths? I mean, how are flamingos coming on the road and getting... That's what is very surprising. In fact, it is a... Isn't that shocking? I mean, why should that happen? Yeah, because see, all the wetlands are drying up. This is the flamingo which is, battling for life. In fact, yesterday we got it rescued. इसको ले जाके अभी रीना देव जो एनिमल हॉस्पिटल वहाँ पर लेकर गए थे कल शाम को. This got injured somehow, and these are the 2-3 wetlands that we have in Mumbai. One is the DPS Flamingo Lake. In fact, वो DPS Lake कहते थे क्योंकि बहुत सारी मात्रा में वहाँ पर आजकल फ्लेमिंगोस आ रहे हैं. इसके हमने उसका नाम रख दिया कि DPS Flamingo Lake, ताकि इसलिए उसकी आइडेंटिटी बने रहे. The picture visual that you are seeing now, it is of a TS चाणक्य wetland. ये वो ड्रोन शॉट हमारे एक दोस्त ने लिया था और मुझे आप देखिए कितनी खूबसूरत सिनेरियो है. और ये सारे वेटलैंड आज धीरे धीरे खत्म हो रही है और क्योंकि वो खत्म उनकी शायद उनकी they are missing their place. That is why they get disoriented, they get lost in the flock. So probably couple of them have landed. I mean, we don't know how many have landed on the Palm Beach Road, main road, which is a very busy road of Navi Mumbai. But of course, it was late in the night into 1:30. But yet, one speeding vehicle knocked down one flamingo. But that is very alarming. That's most alarming. That's very alarming and very shocking. Yes, very shocking. Of course, you can't blame the motorist also because motorist is not used to. That's not his fault. He's not used to seeing a flamingo on the road. That is not flamingo's fault either because flamingo got disoriented. उसको क्या पता है यहाँ पर रास्ते में गाड़ियाँ चलती है और वहाँ पर सतर्कता रहनी चाहिए वगैरह वगैरह. So these wetlands are being destroyed only in and around Navi Mumbai, or are the lakes also being destroyed in Thane? ठाणे का भी हुआ ना. ठाणे काफी सारे out of 56 odd late, hardly anything is remaining there. In fact, recently there was a report saying that they have been counting, they have been trying to save them. But the issue is, the government after government, they keep making these promises, but nobody does anything on ground, So, Mr. Aditya Thackeray, when he was the environment minister, when we met him, he said, yes, they should be protected. In fact, we named these wetlands at Panje, Bhendkal, Belpada, and NRA wetland, TH Chanakya, and the Bhandu pumping station. He said not only the wetlands identified by the Ministry of Environment and Forest and Climate Change of central government, they commissioned the ISRO study. Not only those satellite listed wetlands, but all wetlands, whether they are big or small, they need to be protected. We are going to list them. So that listing has remained on paper. Nothing has happened so far. तो कहने का मतलब ये हुआ, एक सेकंड जरा मैं चाहूँगा आप इसका जवाब हिंदी में दें, बीएन कुमार साहब. कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है अगर यही स्थिति रही 1, 2 या 3 साल के बाद यहाँ पर जो फ्लेमिंगोस की माइग्रेशन होती है, वो जो खूबसूरत दृश्य हमें देखने को मिलता है, शायद 2 या 3 साल के बाद नहीं दिखेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है. बिल्कुल वही हालत होगी क्योंकि अभी ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सैंक्चुरी जो है वहाँ पर जितने भी बर्ड्स लैंड करती हैं हाई टाइड के टाइम पे वहाँ से उड़ के बाकी 6 वेटलैंड जो है जिसकी जगह पहले किया था जिसके जिक्र वहाँ पर लैंड करती है जहाँ पर हाई टाइड होती है. अगर उनको ऑल्टरनेट जगह न मिलेंगी यहाँ पर वो लैंड करना बंद कर देंगी. अभी लेटेस्ट आंकड़ा जो BNHS ने बताया हमें कि लगभग 1 लाख फ्लेमिंगो यहाँ पर लैंड हुई है, which is compared to 2.5 lakhs 2 years ago, which is compared to 5 lakhs 5 years ago. धीरे धीरे वे फिल्मों की आने की मात्रा जो है कम होती जा रही है. और ऑब्जर्वेशन ये भी दिया गया कि एक ऑब्जर्वेशन ऐसी थी कि काफी सारी मात्राएं फ्लेमिंगोस आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ. यानी कि ये फ्रेश वाटर वेटलैंड एज वेल एज सॉल्ट वाटर वेटलैंड दोनों में ये जाती हैं. जैसे एक उज्जैन
टी डैम है, वहां पर भी काफी सारी मात्रा में फ्लेमिंगोज दिखाई देती है। सो मुंबई में डेफिनेटली इनकी आना जाना कम हो जाएगा, और हमारा जो फ्लेमिंगो सिटी हमने जो नाम दिया है हमारे शहर को, वो नाम केवल एक क्या बोलते इंडिकेटिव एक है ना वो बीएन कुमार जी, मगर द चीफ मिनिस्टर कम्स फ्रॉम ठाणे एंड चीफ मिनिस्टर ऑल द टाइम प्रोमिसेस दैट ये फ्लेमिंगो जोन जो है वो जोन इज स्टेइंग प्रोटेक्टेड. There is no way, number one, there will be any kind of encroachment on this flamingo zone. Number two, they will see that it's environmentally protected. And the way जो आपके फिल्म वो वीडियो जो आ रहे हैं उसमें जो पानी के क्वालिटी है, I want to know from you कि number one, what is the CM? Is he really working on the promises that he has been giving on protecting the flamingo zone? And number two, the quality of water there. If it is polluted the way it seems to be in the video, does it affect the flamingos? Because we could see at the time earlier, 15-20 years back, the flamingos used to come to Mithi River, and the Mithi River was so dirty, oil slick, filled with oil, all kind of duplicate oils, that there was no water at all oil, and they were landing. So this polluted waters also creates problem for the flamingos. B.N. Kumar ji? Definitely. In fact, whatever Chief Minister says, चीफ मिनिस्टर अपने उसके भी आई थिंक he's got his own limitations in the sense chief minister is not supposed to do everything. He at the most he will say he will assure us yes things will be better, things will be good, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे, फ्लेमिंगो जोन वगैरह को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. Ultimately it boils down to the other ministries, other departments down the line. जैसे कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसका काम है ये रिवर वाटर पोल्यूशन, आपके जो क्रीक वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है उसको रोकें. अभी एक पिछले 2-3 महीने हम लोगों ने डिस्कस किया था, घनसोली नोड से जितना भी श्योर निकल रहा था, जितने भी गंदा पानी टॉयलेट से, बाथरूम से, किचन से, वो सारा का सारा पानी अनट्रीटेड पानी सीधा डायरेक्टली समुद्र में जा रहा था. उसी तरह का और एक आलम रिसेंटली हमने देखा, एक सिचुएशन बेलापुर में, इसके बारे में भी हम आवाज उठाने वाले हैं. बेलापुर में पहाड़ के साथ में वहां पर काफी सारे स्लम्स आ रहे हैं. वो स्लम कॉलोनी से जितने भी पानी निकलता है गंदा पानी, दैट गोस इनटू स्टॉर्म वाटर ड्रेन and that goes straight into the sea, untreated water, that again poisoning the sea, poisoning the creek. और कई सारे नाले हैं, कई सारे, ये इंजर्ड बर्ड है, कल इसको किए थे, कई सारे नाले हैं वो डायरेक्टली गो इनटू द सी. इनफैक्ट 2005 से 2006 में जब बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, वो बाढ़ के टाइम में भी एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से. कमेटी का रिकमेंडेशन क्लियर ये था, 1-2 स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, नाले, चैनल जितने भी समुद्र में जा रहे हैं उसको रोके, वहां पर ट्रीटेड पानी समुद्र में जाए, उस तरह का प्रावधान करने की जरूरत है. और जितने भी नाले हैं, जो ड्रेन्स है, उनको वाइड करने की जरूरत है. काफी सारे ड्रेन चोक्ड है, इसलिए पानी रुक रुक के वहां पर जाती है. और ट्रीटेड पानी तो नहीं, ट्रीटमेंट प्लांट्स का फंक्शनिंग इज ऑल्सो हाईली क्वेश्चनेबल. आई डोंट थिंक द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर फंक्शनिंग मोर देन 40-50% ऑफ द कैपेसिटी. तो मोस्ट ऑफ द वाटर जस्ट गोस. अब महाराष्ट्र में देखिए ना कितना बास आता है, वहां पर पूरा गंदा पानी सीधे समुद्र में जा रहा है ना. नाम है उसका नाम लव ग्रोव, और वहां पर पूरा हेट सिचुएशन है. You know, B.N. Kumar ji, when we initially started the discussions long back, when we were discussing on various topics, one of the most important topics was also the temple hazardous zone, the Balaji temple hazardous zone. Right. जो जिस प्रकार से encroachments on mangrove dominated areas, encroachments on the fishing zone, encroachment on the wetlands, and you and your association were fighting. जिस प्रकार से आप टेम्पल को आपने इतना जगह which was supposed to be handed over back, 19 acres out of 19 acres, 10 acres allot किया हुआ है. तो what is the status now on the 10 hectares land to Balaji temple? Any development? Yes, उसमें 2-3 डेवलपमेंट्स हैं. सबसे बड़ा डेवलपमेंट दैट इज अगेन शॉकिंग टू माय पुट वाइल्ड वर्ड्स आरकेबी. वहां पर सिरको ने क्या किया, वो जितने भी एरिया था जो कास्टिंग यार्ड के लिए अलॉट किया हुआ जगह, लगभग 19-20 हेक्टेयर जगह जो है, वो सारी की सारे एरिया को अभी सिरको ने रेसिडेंशियल जोन करके डिक्लेयर कर दिया. वाह, लवली. इसको तो पता नहीं सिरको को किस तरह की मेडल दी जाए इस ऐसे महान कार्यक्रम के लिए. और हमने, हालांकि एनजीटी ने अभी हमारा पिटिशन पेंडिंग है. इनफैक्ट लास्ट टाइम जो हियरिंग हो रही थी उस टाइम सिरको एमएमआरडीए के लोगों ने आपत्ति उठाई थी हमारे पिटिशन पे. उन्होंने कहा था कि ये पिटिशन डिलेड है,
लेट इन्होंने फाइल किया, इसके लिए इसको खारिज कर देनी चाहिए। लेट क्यों हुआ? सिडको का कहना है कि मई 2022 में हमने प्लॉट की अलॉटमेंट करी और अगस्त वगैरह में भूमि पूजा होने वाली, तो उसको उन्होंने जिक्र नहीं की। आज 2024 लगभग 2 साल हो गया। 2 साल के बाद ये एनजीटी क्या नाम है, नेट कनेक्ट फाउंडेशन, बीएन कुमार जो उनका एप्लीकेंट है, अपने आप को बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं, अलर्ट जर्नलिस्ट कहते हैं, उनको पता नहीं था क्या मई में हम लोगों ने अलॉटमेंट किया? उन लोगों ने उस टाइम आवाज क्यों नहीं उठाई? आज आवाज क्यों उठा रहे? इसलिए उन्होंने What kind of argument is that? What kind of facetious, idiotic argument is that? Now, वो कहते हैं कि वो 1 महीने के अंदर इनको करनी चाहिए थे, वो टाइम बार हो गया, निकाल दो इसको। वो what time bar? I don't understand. MMRD On what basis? Wait, there is no statute of delay. There is no statute of limitation in terms of filing a petition like that. But all I'm trying to say is, how has Sitco declared this to be a residential zone? With whose permission? Has the state government endorsed it? Has the government of India endorsed it? What? Nobody has endorsed. In fact, we went to the central government and asked whether they have given any permission. They said no, nothing of the given. So Sitco is in effect a republic within a republic. Is that it? Yes. Yeah. What Sitco is trying to do, Sitco is trying to use the loopholes in the law. The laws are, I mean, the law में situation ऐसा है भी, कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान जो बनाया गया था, and they don't talk. Sitco, we try to talk to them. They don't talk to anybody. They don't talk to anybody. They don't talk to us also. They हमारी of course there was one very friendly joint managing director, Mr. Kailash Shinde. At least of course he used to respond to my WhatsApp messages. तब ये हमने टेम्पल के बारे में मामला उठाया या फिर अनऑथराइज्ड टेम्पल्स आ रहे हैं पहाड़ के ऊपर, तो उसके ऊपर मामला उन्होंने बोला कि दिस मैटर हैज बीन रिफर्ड टू सीवीसी। एक छोटी सी कहानी विदिन कहानी है ये। बेलापुर में एक हिल है जो पारसिक हिल्स लग के वो, और दैट इज कनेक्टिंग द कारगर हिल्स एंड द पारसिक हिल, उसको हम बेलापुर हिल कहते हैं। वो बेलापुर हिल के ऊपर हमारे आशंका है कि लगभग 20 से 25 अनऑथराइज्ड टेम्पल्स आए हैं। देवी माता टेम्पल, वो माता टेम्पल, हजार काइंड ऑफ थिंग्स। द टेम्पल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हिल एंड गो अप टू द मिडिल ऑफ द ऑन द स्लोप। पूरा हिल के उन लोगों ने कवर कर दिया है और ऑन टॉप ऑफ द हिल में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बिल्कुल राइट अक्रॉस द रोड सिडको का हेडक्वार्टर्स है जी। उनको ये चीज दिखाई नहीं देती है। और पेड़ काटते हुए सब लोग जा रहे हैं। पेड़ काटे बगैर कर नहीं सकते हो। आज आप इनफैक्ट इफ यू टेक ए सैटेलाइट मैप टुडे, आपको नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा, आपको सारी डिटेल भेजूंगा। सैटेलाइट मैप पे काफी दिखते हैं, काफी घने घने जंगल जैसे पेड़ हैं, और पेड़ के बीच में छोटा सा एक गुंबद, एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है इतनी ऊंचाई से। लेकिन सामने आंखों के सामने जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है हिल टॉप ऑफ द हिल, उसी सर्कल से क्रॉस करके सिडको वाले अपना ऑफिस में जाते हैं, बाकी लोग जाते हैं, वेटलैंड कमिटी जितने भी ऑफिसर जाते हैं, सब देखते हैं। I can't believe that this could have been done. They can't see it. This could have been done without political patronage. I am reasonably certain some politician is involved. Without that you can't do it. सुनिए ना, तो हमने अच्छा ये बात जब से पहले 2-3 टेम्पल बनना शुरू हुआ था ना, शुरू हुई थी 9 साल पहले, तब वहाँ के कल्पतरु एसोसिएशन के लोगों ने, सेक्रेटरी ने लेटर लिखा था सिडको को। वो लेटर उन्होंने हमको दिया, देखो सर हम लोग 9 साल से झगड़ा कर रहे हैं, बावजूद से उसके इतना बढ़ रहा है और बढ़ गए टेम्पल। फिर वो टेम्पल से बहुत सारी आवाज़ निकलती है, नॉइस पोल्यूशन होता है, कुछ भी उत्सव हो, जागरण हो, ठीक है अपना जागरण करो, रामनवमी करो, कुछ भी माता की चौकी जो भी करना है करो, लेकिन आपकी पूजा, आपकी आस्था की वजह से बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए ना। एग्जाम का टाइम है, बड़े बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पर, सामने कॉलोनी से वहाँ पर रहते हैं। तो लोगों ने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। पुलिस ने बताया कि हमारा हिसाब है, एक हिसाब के अनुसार 150 टेम्पल्स वहाँ पर आए हैं, 150 टेम्पल्स, स्मॉल एंड बिग पकड़ के। और एक टेम्पल, एक 1-2 टेम्पल हमने देखा वहाँ पर जाके पिछले सैटरडे को सर्वे में, 2000 आदमी वहाँ पर बैठ के भोग कर सकते हैं, मतलब खाना कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े हॉल उन लोगों ने क्रिएट कर, या और किसी के so new temple town has been created there on the hill। अच्छा, तो हमने जब सिडको जॉइंट एमडी को बताया ये हो रहा है, आप लोग कुछ करो, उन्होंने बोला कि प्लीज टॉक टू माय सीवीसी, उन्होंने नंबर दे दिया, सीवीसी सीवीओ, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, या चीफ विजिलेंस ऑफिसर जी। चीफ विजिलेंस ऑफिसर इज अंडर द सीवीसी, डायरेक्टली उसके अंदर आता है। तो हर पब्लिक सेक्टर कंपनी में विजिलेंस कमिश्नर की जरूरत है, एक कायदा है। तो उसमें उसको उन्होंने रेफर किया। दैट सीवीओ जो है, ही इज अ कॉप, ही इज एन आईपीएस गाय, मेंगड़े करके डीसीपी लेवल का आदमी है।
वो पहचानते हैं हमारे अब से ही यूज्ड टू बी हैंडल क्राइम इन नई मुंबई पुलिस एरिया। उनको अब उनसे कांटेक्ट कर उनका नंबर दिया था, तो फिर हम लोगों ने उनको अप्रोच किया, उनको लेटर भी लिखा और हमने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि यस वी आर टेकिंग वेरी सीरियस व्यू ऑफ दिस, दिस हैज बीन रिफर्ड टू द प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द सम अदर डिपार्टमेंट। बोले देयर इज अ कमिटी इज लुकिंग इनटू दिस नाउ। आई मीन ये तो टोटली ब्यूरोक्रेटिक हो गया ना, कमिटी डिस्कस बट बीएन कुमार जी, आपका जो लड़ाई शुरू हुआ था कि 19 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड which the MMRDA has supposed to hand it over to SIDCO and SIDCO was supposed to hand it over to the forest department, और उसमें से 19 हेक्टेयर्स में 10 हेक्टेयर आपने बालाजी टेम्पल को दिए। आपने वहां पर भी एक जंग शुरू कर दिया था। अब ये जंग जो पूरे इतने महीने इतने साल जो लड़े हैं, इट इज कम टू अ निल इफेक्ट बिकॉज एज यू से the whole area is residential area now, residential zone. So SIDCO has full authority over the entire place, and Balaji temple से लेके जो अलग-अलग zones वहाँ पर बन रहे is open for commercial and housing activity. So the entire your fight on protecting of environment, everything goes for a toss. Everything goes for a toss with a mangrove dominated area. Now all the mangroves are going to go on the 19 acres of land. All the fishing zone is going to go, and the wetlands will no longer remain wetlands. BN Kumar ji. Yes, that is the development. But what's happening now is because SIDCO का ऑब्जेक्शन, MMRD ने जो ऑब्जेक्शन उठाई थी NGT के सामने, उस ऑब्जेक्शन को NGT ने खारिज कर दी। They dismissed the allegation, those objections. बोला कोई डिले विले की चक्कर नहीं है, we will not go into that. There is no delay. Even if there is a delay, हम उसको कंडोन कर देते हैं, माफ कर देते हैं। मान लिया डिले है, लेकिन हमने माफ कर दिया। So delay is not a question now. Now there will be hearing on 25th. There is a fresh hearing on 25th on the admissibility, whether हमारा application को admit करे for hearing or not. So there is a hope. Let's see what NGT decides. All the very best to you. I hope it happens. But I'm very shocked that these 150 new temples which have come up on one hill, 150 मंदिर, क्या बात है सब? 150 temples and nobody saw them coming. Yeah. मतलब अपने आप प्रकट हुए, मतलब स्वयं भू प्रकट हुए, मतलब सारे। नहीं, आप भी नहीं देखे बीएन कुमार जी, आपको भी टाइम लगा, वक्त लगा उसको आइडेंटिफाई करने में कि टेम्पल्स 2000 लोग एक साथ हॉल में बैठ रहे, इतने बड़ा कंस्ट्रक्शन आ रहा है। It missed your side too. और बीएन के साहब, अभी तो वो मंदिर वाले कह रहे होंगे हमारा तो प्राचीन मंदिर है, 2100 साल पुराना है, ऐसा करके बोलेंगे आपको। बताएंगे, कोई पुराना पत्थर दिखाएंगे, बताएंगे पुराना ये वो है, लेकिन वो तो will not be acceptable because there are Google Maps available. आज का मैप लेके आप go back and see, you can point out. अंग्रेजों का मैप है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? इसकी बात तो नहीं हमारा हिंदुस्तानी मैप थोड़ी है। बिल्कुल उसमें दिखेगा सर, ध्यान से दिखेगा। अभी आप वो हिंदुस्तानी मैप दिखाएंगे आपको, सैटेलाइट पिक्चर दिखाएंगे, देखो ये सैटेलाइट पिक्चर 693 BC की है, तब से मंदिर है हमारा यहाँ पे, ये होने वाला है। But jokes apart, let me ask you this, BNK Saab. What is going on? I mean, why are we so intent on killing ourselves? All these bureaucrats, I've asked you this before, all these chaps who do whatever they are doing, पूरे wetlands आप नवी मुंबई के और ठाणे के आप destroy कर रहे हैं, आपको दिख रहा है। You see, the reduction in the number of flamingos is an indicator of things to come, of a disaster to come. Let's be very clear. जैसे for example, something which starts as a cough becomes a chronic cough and later on is found to be emphysema of the lungs, which in itself turns to lung cancer. That is what is happening here. This is just an indicator कि फ्लेमिंगोज अगर वहां पर नहीं आ रहे, 5 लाख से सिर्फ 1 लाख रह गए, 3 के 4 साल पहले 5 लाख थे, अब 1 लाख रह गए, इसका मतलब ये हुआ द लैंड इज सिक, देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर इन द लैंड. व्हाट आर वी डूइंग? व्हाई आर वी डूइंग दिस? हैव यू एवर, आई एम श्योर यू मस्ट हैव मेट दीज चैप्स प्राइवेटली आल्सो. कोर्ट में कभी ना कभी असाइड आगे ले जाकर के आप मिले भी होंगे उनसे कि भैया आपके भी तो परिवार यहाँ रहते हैं, आप भी यहाँ रहते हो, अपने बच्चों के लिए आप क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? बीएन कुमार साहब बताएं प्लीज. ये इस चीज को जानते होंगे, लेकिन उनके कुछ कंपल्शंस होंगे, दे नॉट टेकिंग दिस इशू वेरी सीरियस. इनफैक्ट हम लोग ये जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ना, ये माइग्रेटरी बर्ड्स को हम कहते हैं कि दे आर दी अनडिक्लेयर्ड एम्बेसडर्स
ऑफ गुड एनवायरनमेंट। जहाँ से भी आते हैं वो मतलब वो वहाँ से अच्छा पर्यावरण का संदेशा लेकर आते हैं, और यहाँ से कहीं और जाते हैं बोलते हैं मुंबई की हवा अच्छी थी, वहाँ देख के वहाँ से लेके हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो दे आर दी एम्बेसडर्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट गुड एनवायरनमेंट, अच्छा वातावरण, अच्छा क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करती हैं। इतनी खूबसूरत सिचुएशन नज़ारा अपने को देखने को मिलता है। बावजूद उसके इसके अलावा खूबसूरत है वगैरह, ठीक है, ब्यूटी ऑफ द वगैरह छोड़ के इट मेंटेन्स होल लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लोकल फिशिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। आज के तारीख में जितने भी डेवलपमेंट हो रहा है दे डोंट बॉदर अबाउट द लोकल कम्युनिटी। कितने झगड़ा कर करके अभी एयरपोर्ट डेवलपमेंट के इर्द गिर्द में जितने भी विलेजेस थे उनको जस्टिस अब जाके 10 साल की झगड़े के बाद मिल रहे। जेएनपीटी में नंद कुमार ने आपको बताया होगा, पवार ने, अभी भी जेएनपीटी विस्थापित लोगों को अभी भी न्याय नहीं मिला है। फ्रॉम 1984 1984 से लेकर के आज तक अभी भी वो जी 40 साल हो गए। अभी भी वो अपना कॉन्सेंट्रेशन कैंप में क्या कहते हैं उसको, ट्रांजिट कैंप, transit camps. That's right. Transit. So that is After 40 years. After 40 they're still there, and people have been shouting. We have gone to court. NGT has ordered things to be given, and JNPT has ordered. I must admire your spirit, B.N. Kumar Saab, and our Nand Kumar Pawar Saab, Stalin Dayanand Saab, all of you, apna Rohit Joshi from Thane, and there are so many other people who have been working for the environment. All of you are doing a wonderful job. You are charging at windmills. जी. I can see that. All of you are Don Quixotes charging at monsters. The only problem is that you need the help of just about everybody. I think that what you have talked about today should be the main story everywhere. Now, I am completely and totally at a loss as to why this is not a major election issue here. यहाँ पर तो ये एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठाणे में और नवी मुंबई में तो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा ये होना चाहिए। मुंबई में भी, बिकॉज ये जो ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी जो है मुंबई को लग के जाती है ना, वो जी बिल्कुल दुरुस्त बात। ऑन वन साइड इट टचेस द मुंबई आइलैंड। एक्चुअली मुंबई आइलैंड को ज्यादा प्रभाव करती है एज कम्पेयर टू आवर साइड। और मुंबई से कचरा जो भी निकलता है, जिस तरह से, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि शूज, फुटवेयर, चप्पल्स, गादी, मैट्रेसेस, बॉटल्स, होल्स मैट्रेसेस, मेडिसिन, ये सारे के सारे कचरा के हमारे मैंग्रोव्स में अटकते हैं। यहाँ पर ये सारे हम समुद्र में डाल रहे हैं। Who throws mattresses into the sea? I mean, you have to be a total nutter to be able to do this. Nut, you have to be a nut. And you got 35 lakes in Thane, the entire Thane, Navi Mumbai belt. How many? And 6 creeks जो आप अभी बात कर रहे थे. So, it's so magnificently endowed, the environment there, and all we are doing is destroy it every day, every hour. How many left? How many lakes are left? Hardly any now. Hardly मतलब कितनी? 35 में से कितनी है प्रदीप जी? 34 के 35 was there, 15 was identified as having excess toxins. Toxins. Yes. So which means all the sewage is being emptied into these lakes. बिल्कुल. Lakes and creeks turning into wastelands. Yes, exactly. Exactly what happened to Powai Lake. We saw that ourselves. Pradeep, if you remember, we had gone there with Professor Rajendra Singh. Yes. And the sewage of the buildings around is being thrown into the lake. I mean, and that is one of the water catchment areas for the Mithi River. Yeah. So what do you expect the health of the Mithi River to be? I mean, it's awful, isn't it? So why don't we understand all this? Why do our people have such a blasé attitude towards the environment? BNK sir. I think it's basically carelessness. कि क्या फर्क पड़ता है मेरे को? I mean, सब चंगासी है, की फर्क पड़ता है kind of a situation. तो जब तक it doesn't hit you, आपको समझो एक दिन पानी रुक के आपको गंदा पानी आपके घर में आए, तो आपको पता चलेगा कि पानी की महत्व क्या है. So it has to hit. या 26 जुलाई बार हो तो जा करके लोग जागेंगे. 26 जुलाई जब हुआ यहाँ पर महाराष्ट्र में, तब जा करके लोग जागे कि यार ये भी 2005 में कि यार ये भी हो सकता है. सडनली लोगों को याद आया कि एक मिठी रिवर भी है यहाँ पे. बिल्कुल. Prior to that, nobody had even heard of the Mithi River. I am very glad to say you were there with us. Pradeep ji, remember in 2000-2001, we were the first. Of course, we were in Mumbai at that time. We were the first to talk about the Mithi River.
बराबर। Exactly. And people over here in Mumbai who have lived for years and years and years and decades didn't even know that there is a Mithi river. Yes. And all the people who used to turn up their noses at the northern suburbs and used to say that all those guys from the northern suburbs, that's actually Mumbai, we are Bombay. For the last 4 years during the monsoon, even Bombay is getting flooded, the so-called South Bombay. Yeah. So finally they've all joined the rest of the population. But will people wake up? That's what I want to know. Will people wake up to the kind of danger we are putting everybody in? BNK साहब, will that happen? अभी तो धीरे धीरे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ रहा है। जैसे अजय 150 टेम्पल वाली मैंने कहानी बताई, मतलब जो सिचुएशन मैंने कहानी जो सिचुएशन बताई थी, दैट केम टू आवर लाइट ओनली बिकॉज ऑफ लोकल वॉलंटियर्स, लोकल लोगों ने वहाँ पर देखा एंड दे न्यू, बिकॉज वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज डेवलपमेंट ये था कि दे हैव सीन लैंडस्लाइड वहाँ से मिट्टी गिरते गिरते उनकी कॉलोनी के ऊपर आई थी। वहाँ पर सिरकों ने एक रेडिशनल वॉल बनाए थे पहाड़ को लग के, बेलापुर हिल को लग के, वो दीवार को तोड़ के मिट्टी इनके कंपाउंड में आई थी। तब इनकी आंखें खुली, हाँ भाई ये मिट्टी आके एक दिन ये समझो 4-5 टेम्पल लुढ़कते लुढ़कते राउंड करते करते अपने आएंगे, हमारे कंपाउंड में इतनी गाड़ियाँ हैं या फिर आके अपने कंपाउंड को भी हिट कर सकती हैं। उस समय शायद अगर बच्चे खेलते रहेंगे उनको भी चोट लग सकती है। ये सारी चीज़ें उनके ध्यान में आई है। लैंडस्लाइड कैन अफेक्ट पीपल बिकॉज इरशालवाड़ी में लैंडस्लाइड का अनुभव लोगों को नज़र में ध्यान में अभी भी है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स शॉकर्स, नेचर गिव्स दिस काइंड ऑफ शॉकर्स फॉर पीपल टू रियलाइज। लेकिन चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है सर? चुनावी मुद्दा क्यों नहीं? चुनाव मुद्दा लोगों को बनाना चाहिए। इनफैक्ट अभी वही हम लोगों को कह रहे हैं, हमारी मांग वही है। आज इनफैक्ट देयर इज अ बिग स्टोरी इन डेक्कन हेरल्ड ऑन हाउ क्लाइमेट इशू शुड बी दी फोकल पॉइंट। हमने वही बात उठाई थी। हर मैनिफेस्टो, दोनों मैनिफेस्टो में है, बीजेपी में कांग्रेस में मैनिफेस्टो में लोगों ने क्लाइमेट के बारे में बताया, बट दे आर ऑल जनरल फ्रॉम दी 35,000 फीट अबव द ग्राउंड काइंड ऑफ एनालिसिस। ये होनी चाहिए। I think BN Kumar ji, the laws are not effective. The laws are not effective. The criminal cognizance is not effective. The fear of punishment is not effective. Or heavy penalties जो impose करना चाहिए, that is not being done. You need to have laws that are absolutely strict, that serves as a deterrence. And I think that is not there right now. Laws are there, laws are effective. Only thing is that implementation is not happening. Laws का implementation नहीं हो रहा है। और सबसे पहली बात है अकाउंटेबिलिटी नहीं है आज की तारीख में। आपको एक छोटी सी बताता हूँ। एक सिरको के एमडी थे, नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि बड़े अच्छे जेंटलमैन है वो। उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि नवी मुंबई कोई वेटलैंड नहीं है। वो सर्टिफिकेट के आधार के ऊपर MCZMA ने एक गोल्फ फोर्स को सर्टिफिकेट दे दिया, इट कैन बी बिल्ट ऑन दिस काइंड ऑफ ए वेटलैंड। इसका वेटलैंड के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर दो, इसको बिठा के यहाँ पर आप बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो 20-30,000 लेवल फ्लोर्स को। तो हमने मिनिस्टर सेंटर को जब कंप्लेंट करी प्रधानमंत्री को, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन जो है MOFCF को भेजा। MOFCC ने हमको लेटर लिखा के बताया कि सिरको हैज नो अथॉरिटी टू सर्टिफाई वेटलैंड्स। बावजूद उसके महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सिरको लेटर को एक्सेप्ट करके परमिशन दे दिया फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट CRZ क्लियरेंस। ये है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो उस MD को पकड़ो जिसने ये लॉन्ग सर्टिफिकेट दिया। उस MCZMA जो का डायरेक्टर जो था, उनके मेंबर्स थे। हाउ कैन दे एक्सेप्ट दिस एंड दिस काइंड ऑफ क्लियरेंस? दे शुड बी ब्रॉट टू बुक। तब तक जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है हमारे पर्यटन के पास। आप और हम मिलकर जितना भी आवाज उठाएं कुछ नहीं होने वाला। Accountability is very important. Thank you so much, sir. BN Kumar sir, thank you so much. I hope something happens. We all need to put our heads together. We all need to get out of our offices and get out of our homes and try and protect the environment all around. We can't just leave it to people like BN Kumar to do the fighting for us. Sir, हमारा क्या है? हमारा क्या है कि यहाँ पे ट्विटर खेल के, फेसबुक खेल के कुछ नहीं होने वाला। बाहर आना पड़ेगा। अपना क्या है? हम तो निमित्त मात्र हैं। आज कल है, कल नहीं रहेंगे। लेकिन आगे वाली पीढ़ियों की क्या होगी? ये जो अफसर लोग हैं जो अनदेखी करते हैं, what will they reply? What will they leave behind? What will they leave behind? The old Parsi prophecy, the old Zoroastrian prophecy, that by
before the era of the 20s, that is of the 21st century, is over, that is by the time we reach 2030, there is a possibility that Mumbai might drown, might actually come true. Yes. It might come true, because if you remove the wetlands, you remove all the mangroves, you destroy all the water catchment areas, where is the water going to go? Correct. Right, thank you very much, BNK. Great Thank you, pleasure sir. as always talking to you, even Thank though what you. you say is very, very disturbing indeed. Thank you very much. Keep up the great work. Very Thank you. proud of you. Namaskar. Thank you. Jai Namaskar. Siya Ram. Jai Siya Ram. Namaskar. So, Pradeep ji, we are in for trouble. We are in for real trouble. And now I don't see other channels even talking about this. Nobody's bothered about saving wetlands. Well, we shall continue. We shall continue for as long as we are able. Here on Nation Now, we don't give up a story. We don't leave a story midway. We always take it to its logical conclusion. And we'll try and hold the flag of environment high as long as we are able. And with your support, we will be able. And that's why we are asking you, subscribe to the channel. Channel को subscribe करें. हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करें. चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भेजें, रिएक्ट करें, चैनल को शेयर करें. जहां तक पर्यावरण का प्रश्न है, पर्यावरण के प्रश्न के ऊपर मुझे लगता है सबको ये बात शेयर करनी चाहिए कि किस प्रकार नवी मुंबई और ठाणे में एक बहुत बड़ा पर्यावरण का क्राइसिस आने वाला है, यानी मुंबई में भी आने वाला है. और पर्यावरण का यानी एनवायरमेंटल क्राइसिस आइसोलेटेड नहीं होते हैं कभी, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से और फिर पूरी धरती को इफेक्ट करते हैं. तो आप जहां मर्जी हो, डोंट थिंक दैट यू कैन एस्केप दिस, बिकॉज यू कांट. वेल दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय सिया राम. हर हर महादेव. हर हर महादेव.